This government has created a constitutional mess. आपकी बात है, Let आपकी me बात complete, है। sir. Please, आपकी बात please. है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ अरे जाइए। भाई बैठो ना। बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं सर। ओवैसी साहब पढ़े नहीं सर। पूरा मैं संविधान की बात करता हूँ। बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं, ये कह रहे हैं सर। वो बहस से भाग रहे हैं, वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। The government is not ready to appoint a deputy speaker itself. That is very big. सर मैं इनको टोकना नहीं चाहता कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं। You have been appointed by the speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. आपकी बात है, Let आपकी me बात complete, है। sir. Please, आपकी बात please. है, आपकी Let बात me है। complete. Let me complete. Let me complete, sir. Let me complete, sir. Let me complete. In the last three no confidence, there was deputy speaker. That is why I say first the proceedings are constitutional irregular. I got it your No, point. let me complete. Let me नहीं, हो complete. गई। अरे क्या है सर ये? Let me आप complete. complete। नहीं, सर आप कृपया सुन लीजिए। सर I have gone through चेयरमैन सर, I Chairman, have gone sir. through Article 94, 95, Chairman, sir. and I have Chairman, already sir. seen power of the deputy speaker or other person Chairman, to sir. perform the duties of the office or to act as a speaker. If you'll go through, I think so. Your answer is Chairman, sir. completely. एक मिनट। निशिकांत दुबे जी। बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब। 95(2) क्या कहता है ये पूरा पढ़े नहीं सर। पूरा मैं संविधान की बात करता हूं। बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं, ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर जो ये 10 कह रहा है। 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। संसदीय कार्य मंत्री जी। मैं मानता हूं कि आप बैठिए। आपको पुकार लिया, आपको भी ये बिना मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं। 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। दे दिया। रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओवैसी जी ने उठाया। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी। Very pertinent point relating to the constitution is raised here. When a removal of speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, speaker cannot sit in the chair. The actions of the speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the speaker of the Lok Sabha. Here, this is not at our fault. Around 7 years, the government is not ready to appoint the deputy speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir, Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir.
immediately after the election, Speaker I got it, your and point. Deputy Speaker to be I got elected. it, your point. Last 7 years, you are not elected as Deputy Speaker. Got it. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. You are, Sir, who will win whatever that? you have raised, Therefore, as this your question is OVC very has clear. raised. Article 96 is very जो- clear. Therefore, the House OVC has to, साहब ने जो the House, कहा- sir, my submission is that the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can conduct. आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, अपनी बात मैं कंप्लीट कर लूं। आप ऐसे आर्टिकल मैंने 96 रविशंकर जी को अलाउ किया नहीं। Only KC बिल के पास जाएगी। 96 का क्लॉज Only को रविशंकर देखिए, बिल। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तो वोट नहीं देंगे। हो गई तो सर मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे। हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पर चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे तो उसका निस्तारण होना चाहिए था। ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीज़ें हैं, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं। तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो डिबेट हो अच्छी है। आज की डिबेट हो, नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे ही नहीं, आखिर इस हाउस में नहीं, मैं आपको केवल तथ्य बता रहा हूँ कि तथ्य देखिए 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ अध्यक्ष जी बी मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ हाई स्टैंडर्ड की डिबेट हो। सदस्यों ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद अध्यक्ष जी से कहा है कि आज जावेद साहब इस पर नहीं शुरू करेंगे, नोटिस जावेद साहब का है। मैं गौरव गोगोई जी को अनुमति देता हूँ। गौरव गोगोई जी आप बोलेंगे। गौरव गोगोई जी गौरव गोगोई ये रिमार्क है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आप चेयर पे कोई रिमार्क नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी शुरू करो। गौरव गोगोई जी आप बैठिए। गौरव गोगोई जी, दिस इज नॉट गुड। गौरव गोगोई जी योर कमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप चर्चा शुरू करें। मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी। गौरव गोगोई जी शुरू करें। गौरव गोगोई जी गई है केवल गौरव गोगोई जी की। नो गौरव, आप हमसे नहीं कहेंगे ना, मैंने आपको अनुमति दी है। Nothing will go on the record except गौरव गोगोई जी। सबका मैं दे चुका हूँ। उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर, मैं उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूँ ऑलरेडी। गौरव गोगोई जी आप इस चर्चा में इस चर्चा में आप गंभीर हैं। इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए।
सब लोग बैठिए, बोलिए। गौरव गौरव बैठिए। स्वागत दादा, आपको मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए। अरे आप बैठिए, मैं आपको अवसर दूंगा। गौरव को बैठिए। गौरव को बैठिए। सभापति नथिंग विल। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है। सर मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस, impeccable objectivity and irreproachable fairness, and above all absolute impartiality। impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, ये तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को आपका संकल्प नहीं है। आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है, और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है, और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया। कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास प्रस्ताव पार्टी का टाइम आप बैठिए, आप बैठिए। सर मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया
कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside। तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृह मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए क्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker। हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak, he can take part but he cannot preside sir। And by and so while the chairperson, a selected chairperson has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker which is not allowed। It's a violation of the constitution। और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair। A deputy speaker was speaking on the chair। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है यहाँ। देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर, ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये माइक भी एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak। कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते हुए, क्योंकि
व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि इस संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं।